آج ویو 360 میں جون 10 افریقی امریکیوں کے لیے غلامی سے آزادی کی یاد منانے کا دن۔ دیکھیے ایک جیل سے چلنے والا امریکہ کا پہلا ریڈیو اسٹیشن جو قیدیوں کی معاشرے میں کامیاب واپسی کا ایک مثبت ذریعہ بھی ہے۔ Welcome to Hotlines on Inside Wire. I'm Cynthia Gonzalez. I'm Amber Pierce. And I'm Sarah Berry. At Denver Women's Correctional Facility. اور بھارت میں کھانا پکانے کے لیے لکڑی کا استعمال ختم کرنے کا منصوبہ گیس کی بڑھتی قیمتوں کے باعث ناکام۔ گھر کا خرچہ چلاؤں کہ گیس چلاؤں بتاؤ۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ حکومت پاکستان کی جانب سے توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے نکال دیا جائے گا۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جرمنی میں ہونے والی میٹنگ کا اعلامیہ اب سے کچھ دیر بعد جاری کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مارچ کے مہینے میں ہونے والی میٹنگ کے بعد اس لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان کو ٹیرر فائنینسنگ کا راستہ روکنے کے لیے جامع اور مؤثر اقدامات کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ اس کے بعد اپریل 2022 میں حافظ سعید کو 33 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ پاکستان کو گرے لسٹ میں پہلی بار فروری 2008 میں ڈالا گیا، جبکہ جون 2010 میں پاکستان اس سے باہر آ گیا۔ دوسری بار فروری 2012 میں پاکستان اس لسٹ میں شامل کیا گیا اور فروری 2015 میں پاکستان اس لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہوا، اور تیسری بار جون 2018 میں پاکستان کو پھر سے گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں فرخ سلیم صاحب سے، جو کہ معاشی امور کے ماہر ہیں اور اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں۔ فرخ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ اگر پاکستان اس مرتبہ جیسے کہ امید کی جا رہی ہے کہ گرے لسٹ سے باہر نکل آئے گا، اگر ایسا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس سے پاکستان کی مارکیٹس پر اعتبار میں اضافہ ہوگا، تو اس سے ملک کو درپیش معاشی چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں کیا مدد ملے گی؟ 2018 کا مقابلے اور وہ پاکستان جو ہے پھر ایک اور ایکشن پلان آیا تھا 2021 میں، اس میں 7 ٹارگیٹ کیے گئے تھے، وہ 6 مکمل ہو گئے تھے، تو اب سمجھیے کہ ٹوٹل میں 34 میں سے تقریباً 32 جو ہیں وہ پاکستان کو کمپلائی کر چکا ہوگا۔ اب اعلان جیسے آپ نے کہا کہ اعلان باقی ہے، 4:30 بجے برلن ٹائم میں اس کا اعلان۔ فاروق صاحب آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی، تو میرا خیال ہے کہ کنٹرول روم آپ کو دوبارہ سے کنیکٹ کر کے کچھ آڈیو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہم آڈیو کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دوران میں مزید ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ پاکستان بہت عرصے سے 27 میں سے 26 ایسے نکات تھے جن پر پاکستان کا یہ دعویٰ تھا کہ ان نکات پر عمل درآمد کر لیا گیا ہے، لیکن ایک ایسا ایلیمنٹ تھا ان ٹاسکس میں سے جس پر بار بار FATF کی طرف سے پاکستان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پر ابھی آپ نے تمام تر سٹیپس نہیں لیے ہیں، اور وہ آخری جو ٹاسک تھا وہ یہ تھا کہ جن لوگوں کو ٹیرر فائنینسنگ کے نتیجے میں گرفتار کیا جاتا ہے ان کے کیسز کو چلا کر ان کی سزاؤں پر عمل درآمد کیا جائے، اور اسی بارے میں پھر مزید اقدامات جو ہوئے وہ ہم نے آپ کو بتائے۔ فاروق صاحب سے دوبارہ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے، تو فاروق صاحب تھینک یو ویری مچ۔ بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اس سے کیا، پاکستان کی مارکیٹس کو کیا فائدہ ہوگا؟ جی، جہاں تک میں سمجھے تو FATF کی کارروائی سے وہ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کمپلائنس دکھائی جاتی ہے تو طریقہ کار یہ ہے کہ شاید ایک ڈیلیگیشن، ایک مشن بھیجا جاتا ہے جو پاکستان میں آ کے اس کو کنفرم کرتا ہے۔ روٹین کا طریقہ یہ ہے، لیکن FATF کے پاس یہ اختیار اپنی ہے کہ وہ فوراً پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال دے۔ ونس یو آؤٹ آف دا گرے لسٹ تو بہت سارے معاشی فائدے ہونے لگتے ہیں۔ آواز میں ابھی بھی فاروق صاحب میں بہت معذرت چاہتا ہوں، آپ کے آواز میں ابھی بھی ہمیں مسئلہ ہو رہا ہے، کچھ شاید کنیکشن بہتر نہیں ہے۔ ہماری خواہش تھی کہ ہم فاروق صاحب سے اس بارے میں مزید بات کریں کہ پاکستان کو کیا کس قسم کے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پاکستان کو کم انٹرسٹ ریٹس پر لونز ملنا شروع ہو جائیں گے، ان ترقی
ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے جو کہ پاکستان اپنے ملک میں شروع کرتا ہے اور ان کے لیے انٹرنیشنل فائنینسنگ اداروں کی طرف جاتا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں, اس پروجیکٹ کا اتنا فائدہ ہوگا, یہ ریٹرن ہوگا, تو اس کے لیے جو لونز ملتے ہیں وہ کم انٹرسٹ ریٹ پر ملنا شروع ہو جاتے ہیں. انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر جب اس قسم کی کوئی قدغنیں نہیں رہتی تو جو فائنانسرز ہیں یا جو بزنس گروپس ہیں ان کا اعتبار ملک کی مارکیٹس کے اوپر اور اپنی انویسٹمنٹ کے ریٹرن پر بڑھ جاتا ہے. تو یہ چند فوائد ہیں جو کہ یقیناً امیڈیٹلی پاکستان کو مل سکتے ہیں, لیکن جو زیادہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اس لسٹ سے باہر نہیں آتا تو انہیں مزید کیا کرنا ہوگا, اور اگر آ جاتا ہے تو اب اس لسٹ سے باہر رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا تاکہ چوتھی بار پاکستان کا نام اس لسٹ میں شامل نہ ہو. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ, تازہ ترین خبریں, دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے. دیکھیں, سنیں, پڑھیں اور شیئر کریں. سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں. پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں. پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر. VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے. گرمیاں آتے ہی امریکہ میں بہت سارے فیسٹیولز اور ہالیڈیز شروع ہو جاتے ہیں, اور جون 10 امریکہ کی وفاقی حکومت کی چھٹیوں میں شامل ہونے والا نیا ہالیڈے ہے جسے صدر بائیڈن نے گزشتہ سال فیڈرل ہالیڈے کا درجہ دیا تھا. جون 10 وہ دن ہے جسے امریکی سیاہ فام غلامی سے نجات کے دن کے طور پر مناتے ہیں. اس دن کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں دیکھیے یہ رپورٹ. امریکہ کی نئی سرکاری چھٹی جون 10 کو سیاہ فام امریکی 150 سال سے زائد عرصے سے مناتے آ رہے ہیں. یہ دن امریکہ سے غلامی کے خاتمے کی یاد کے لیے منایا جاتا ہے. اسے جون 19, 1866 کو پہلی بار منایا گیا. اس تاریخ سے ایک سال قبل ریاست ٹیکساس کے علاقے گالویسٹن کے سیاہ فام غلاموں کو اپنی آزادی کی خبر ہوئی تھی, اور یہ پتہ چلا تھا کہ امریکی خانہ جنگی 2 ماہ پہلے ختم ہو چکی تھی, اور یہ اعلان ان کے صدر ابراہم لنکن کی جانب سے غلامی کے خاتمے کے حکم نامے کے اجرا کے 2.5 سال سے زائد عرصے کے بعد پہنچا تھا. 1866 سے اب تک یہ دن گلویسٹن میں ہر سال منایا جاتا رہا ہے, جس میں ملک کے مختلف علاقوں اور شہروں میں تقریبات منعقد کی جاتی رہیں. اس چھٹی کا نام جون کے مہینے اور 19 تاریخ کو ملا کر بنایا گیا. اس تاریخ کو جوبلی ڈے, غلامی سے چھٹکارے اور آزادی کا دن بھی کہا جاتا ہے. اسے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے پریڈز اور تقریبات منعقد کر کے منایا جاتا ہے. 1980 میں ٹیکساس جون 10 کو عام تعطیل قرار دینے والی پہلی ریاست بن گئی. تب سے کئی ریاستیں اس دن کو سرکاری چھٹی دے کر یا اسے منا کر تسلیم کرتی رہیں. 2020 میں جارج فلوئڈ اور ایک اور سیاہ فام کی پولیس حراست میں ہلاکت پر ہونے والے مظاہروں کے بعد اس دن کی اہمیت بڑھ کر سامنے آئی. 2021 میں جون 10 کو کانگریس سے پاس ہونے اور صدر بائیڈن کے دستخط کے بعد امریکہ کی 11ویں سرکاری چھٹی قرار دے دیا گیا. کووڈ کی پابندیاں ختم ہونے کے بعد اس سال جون 10 کو امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں بہت جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے, اور وائس آف امریکہ کی بلڈنگ کے ارد گرد بھی اس کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بلکہ ایک کانسرٹ کا سٹیج بھی بالکل وائس آف امریکہ کی بلڈنگ کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے, اور اس مرتبہ بہت سے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, یہ امید بھی کی جا رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. بہت سے لوگ جیلوں کو مجرموں کو اس وقت تک بند رکھنے کی جگہ سمجھتے ہیں جب تک کہ ان کی سزا کا وقت پورا نہ ہو جائے. تاہم اب ماضی کے پچھتاووں سے آگے بڑھنے اور معاشرے میں پھر سے کامیابی سے شامل ہونے کے لیے قیدیوں کی صلاحیتوں میں اضافے کے بارے میں سمجھ بوجھ بڑھنے کے باعث ایک امریکی ریاست نے ایک انوکھا پروگرام شروع کیا ہے, اور یہ پروگرام ہے ریاست کی ایک جیل کے اندر سے چلنے والا ریڈیو اسٹیشن, جس کے پروگراموں کے میزبان اور وہاں مہمان وہاں کے قیدی ہی ہیں. امریکہ کی مغربی ریاست کولوراڈو میں خواتین کی اس جیل کے چاروں طرف خاردار تار لگے ہیں, لیکن اندر کا ماحول زیادہ دوستانہ ہے, یہاں تک کہ اس راہداری میں ایک ریڈیو اسٹوڈیو بھی ہے. Welcome to Hotlines on Inside Wire. I'm Cynthia Gonzalez. I'm Amber Pierce. And I'm Sarah Berry. At Denver Women's Correctional Facility.
इनसाइड वायर कोलोराडो प्रिजन रेडियो अमेरिका में किसी जेल का ऐसा पहला रेडियो स्टेशन है जो रियासत भर में सुना जा सकता है। कैदी इसे अपने कमरों में और जेल से बाहर लोग अपने स्मार्टफोन ऐप के जरिए इसे सुन सकते हैं। सिंथिया गोंजालेस एक हफ्ते के दौरान 50 घंटे इन शोज पर काम करती हैं। मैं रात में सोने के लिए बेताब होती हूँ ताकि सुबह जागकर काम पर जा सकूं। ये टीम खबरें और मौसीकी के प्रोग्राम बनाती है और वो एक रोजाना के प्रोग्राम बिहाइंड द माइक के लिए जेल के दूसरे अफराद का भी इंटरव्यू करते हैं। इस शो में सिंथिया गोंजालेस एक ऐसी माँ से बात कर रही हैं जिसकी नशे की लत इसे अपने बच्चों से दूर एक बार फिर जेल में ले आई है। आप क्या सोचती हैं कि वो आपके बारे में क्या बात सबसे ज्यादा जाने और किस चीज के लिए सबसे ज्यादा आपको माफ करें? कि मैंने अपने बच्चों पर अपने नशे को तरजीह दी। ये कहना मुश्किल है लेकिन ये सच है। मैंने अपने बच्चों के मुकाबले में मनशियात का इंतखाब किया और उन्हें इसकी कीमत अदा करना पड़ी। मैं दुआ करती हूँ कि वो मुझे माफ कर सकें। सिंथिया गोंजालेस का कहना है कि अपने पछतावे के बारे में ईमानदारी से सच बोलना अक्सर न सिर्फ कहने वाले के लिए बल्कि उन सुनने वालों के लिए भी जो खुद अपने पछतावों का शिकार होते हैं एक मरहम का काम करता है। इनमें खुद सिंथिया भी शामिल हैं। मेरा निशाना जो शख्स बना था उसके पीछे एक पूरा खानदान था जो इस वाक़े से मुतासर हुआ होगा। इनकी साथी सारा बैरी कहती हैं कि जराइम अक्सर उस वक्त होते हैं जब लोग खुद को टूटा हुआ महसूस करें। वो कहती हैं कि दूसरे कैदियों की रहनुमाई करके और रेडियो के जरिए दूसरों तक पहुंचकर वो अपने माजी के जख्मों को भरने की कोशिश में हैं। हम तो एक ऐसी जगह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको कम्युनिटी का हिस्सा बनने का एक मुस्बत रास्ता फराहम करे। रेडियो के इन मेजबानों की मदद यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर के तख्लीकी मीडिया कंसल्टेंट रायन कोनेरो करते हैं। रायन कोनेरो इस रेडियो को कैदियों को जेल के अंदर और बाहर राब्तों की बहाली का एक हिस्सा समझते हैं। इन कैद खानों में मौजूद कोलोराडो के 90% से ज्यादा रिहायशी वापस अपनी कम्युनिटी में जाएंगे, तो हम इसे एक कामयाब तजर्बा बनाने के लिए इस सिस्टम में क्या काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर एम्बर पियर्स के लिए ये एक जाती नौयत का सवाल है। एक दहाई से ज्यादा अरसा जेल में गुजारने के बाद उनकी रिहाई में अब सिर्फ 2 साल बाकी हैं। एम्बर पियर्स कहती हैं कि उनके लिए क्या गलत हुआ और क्या दुरुस्त, और अब वो कैसे कोशिश कर रही हैं दूसरी कैदी खवातीन की इस आगही में मदद करके उन्हें खुद अपने मुस्तकबिल के बारे में इत्मीनान हासिल हो रहा है। शैली शेलेंडर के साथ आयशा खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। वैसे तो अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को खुश्क साली जैसे मसाइल का सामना है, मगर वहाँ कुछ इलाकों में हर साल हिजरत करके आने वाले परिंदों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जा रहा है। परिंदों पर नज़र रखने वाली ऐप के डेटा से रहनुमाई लेते हुए परिंदों की हिफाजत के लिए काम करने वाले ग्रुप्स और बाज़ किसान हज़ारों मील का सफ़र करने वाले परिंदों के लिए फौरी तौर पर मरतूब ज़मीन तैयार कर रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ये नज़ारा एक पॉपअप रेस्टोरेंट की तरह है। ये पानी से भरी ज़मीन एक बहुत तवील सफ़र तय करके आने वाले परिंदों को खुराक की फराहमी के लिए दुरुस्त वक्त और जगह पर आर्जी तौर पर बनाई गई है। रियासत कैलिफोर्निया में सेंट्रल वैली का इलाका इंसानों के लिए खुराक की पैदावार का बड़ा जरिया है, लेकिन हिजरत करने वाले परिंदों के लिए जो हजारों सालों से सफर करके इस वादी में आ रहे हैं, अब खुराक तलाश करना मुश्किल हो गया है। 200 साल पहले अगर आप एक परिंदा होते और इस जमीन के ऊपर परवाज कर रहे होते तो आपको पानी में डूबी जमीन और घास की पिचीकारी का मंजर मिलता, जो परिंदों को वाफिर मिकदार में कीड़े मकोड़े और दीगर खुराक फराहम करता था। इसके बाद से ये मंजर एक ऐसे पैचवर्क में बदल गया है जिसमें आपको तकरीबन एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ ज़रात ही नजर आती है। 11,000 किलोमीटर पर फैले हुए इलाके पर अपनी परवाज के दौरान नकल मकानी करने वाले परिंदों की आबादी उस वक्त कम हो जाती है जब उन्हें खुराक या बसेरा करने के लिए कुदरती माहौल दस्तयाब नहीं होता। पिछले 50 सालों में हमने शुमाली अमेरिका में तकरीबन 40% साहिली परिंदों को खो दिया है। चावल का ये खेत साल के इस मौसम में आमतौर पर खुश्क पड़ा होता है। परिंदों और कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का एक मुतनव्वे प्रोग्राम जिसका आगाज़ द नेचर कंजर्वेंसी ने दूसरे इदारों के साथ मिलकर किया है, परिंदों के बसेरे और खुराक फराहम करने के लिए किसानों को चंद हफ्तों के लिए खेतों को पानी से भर देने के लिए रकूम मुहैया कर रहा है। हमें इस मैदान में मगरबी सैंड पाइपर्स का एक झुंड मिल गया है जो शायद पनामा जैसे दूर दराज इलाकों से आए हैं और वो शुमाली आर्कटिक की तरफ जा रहे हैं। खुश्क साली के शिकार इस खित्ते में पानी एक कीमती वसीला है।
और इसे सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। इस बात का तयन करना कि कब और कहां खेतों में पानी भरना है प्रोग्राम की कामयाबी के लिए अहम है। ये वो जगह है जहां ई-बर्ड का काम शुरू होता है। ये एक मुफ्त ऐप है जिसे परिंदों को उनके कुदरती माहौल में देखने के शौकीन अफराद इन मनाजिर को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टीम के अरकान ई-बर्ड मॉडल्स में सैटेलाइट डेटा को शामिल करते हुए ये पेशन गोई कर सकते हैं कि पानी कुदरती तौर पर कहाँ मिल सकता है और दरमियान में खला की निशानदही करके ये तयन कर सकते हैं कि कौन से खेतों में पानी भरने की ज़रूरत है। मॉन्टाना फार्म्स ने प्रोग्राम के लिए अपने 162 हेक्टेयर में से कुछ रकबे पर पानी छोड़ दिया है। चावल की काश्त और कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ साथ साथ चलते हैं। मैं 21 साल से ज़्यादा अरसे से इस फार्म पर हूँ और सफ़ेद चेहरे वाला आइबस एक ऐसा परिंदा है जो 21 साल पहले इक्का दुक्का दिखाई देते थे। अब मुझे इस फार्म पर हज़ारों की तादाद में उनके झुंड नज़र आते हैं। इस मंसूबे की कामयाबी ने रियासत में चावल की सनत से वाबस्ता बरादरी को किसानों के साथ मिलकर खुद अपना प्रोग्राम शुरू करने की जानिब माइल किया है। वो मगरिब में सबसे ज्यादा जमीनों के मालिक हैं। परिंदों की हिफाजत और कुदरती माहौल में उनकी पनाहगाह बनाने के लिए आपको निजी तौर पर जमीन रखने वालों के साथ शराकत दारों की जरूरत है। मैट डिबल के साथ अब्दुल अजीज खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। माहौलियाती तब्दीलियाँ कुर्रा अर्ज़ के सभी जानदारों पर असरअंदाज हो रही हैं। माइक्रोस्कोपिक फ़िज़ाई आलूदगी जो ज़्यादातर लकड़ी, कोयला या दीगर कुदरती ईंधन जलाने की वजह से पैदा होती है, दुनिया भर में इंसानों की ज़िंदगियों को 2 साल कम कर देती है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे जनूबी एशिया में अगर बारीक ज़र्रात की सतह आलमी इदारा सेहत के मेयार के मुताबिक हो तो वहाँ का औसत फ़र्द 5 साल ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है। हिंदुस्तानी रियासतों उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां की आबादी 30 करोड़ है, वहां PM 2.5 नामी आलूदगी की वजह से फेफड़ों और दिल की बीमारी की वजह से लोगों की औसत उम्र 8 साल कम और दारुल हुकूमत नई दिल्ली में 10 साल तक कम हो जाती है। PM 2.5 के ज़र्रे जिनकी मोटाई इंसानी बाल के बराबर होती है, सांस से फेफड़ों और फिर खून में दाखिल हो जाते हैं। हिंदुस्तान में लाखों गरीब दही घरानों के अपने किचन में साफ़ तवानाई का इस्तेमाल उस वक्त शुरू कर पाए जब हुकूमत ने उन्हें खाना पकाने के लिए गैस कनेक्शन हासिल करने के लिए सब्सिडी दी। लेकिन ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें सेहत के उन शदीद मसाइल से निमटने के प्रोग्राम में रुकावट हैं जो अंदरूनी फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से पैदा होते हैं। VOA की एंजना पसरीचा ने शमाली हिंदुस्तान के एक गाँव का दौरा किया और ये रिपोर्ट तैयार की। सदियों से लकड़ी से जलने वाले चूल्हों पर खाना पकाने वाली शुमाली हिंदुस्तान के सरमतला गांव की ख़वातीन की खुशी की उस वक्त इंतहा न रही जब हुकूमत ने उन्हें सब्सिडी प्रोग्राम के तहत खाना पकाने के गैस कनेक्शन फराहम किए। लेकिन अब माया पेट्रोलियम गैस या LPG के ये सिलेंडर बेकार पड़े हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने खाना पकाने के लिए दोबारा लकड़ी जलानी शुरू कर दी है। इतनी महंगाई कर दीजिए, हम क्या करें? गरीब आदमी, अब बच्चों का खाना चलाओ, क्या करें? 300 रुपये मजदूरी है, अब क्या करें? घर का खर्चा चलाओ कि गैस चलाओ, बताओ। पिछले बरस कीमतों में लगातार इजाफे के बाद गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 1000 रुपए से भी ऊपर चली गई। ऊंची कीमत की वजह से बहुत से घराने इसे खरीदने के अहल नहीं रहे क्योंकि वो पहले ही वबा की वजह से होने वाले खुराक की कीमतों में इजाफे और आमदनी में कमी के मसले से दो चार हैं। बावजूद इसके कि हुकूमत ने हाल ही में देही घरानों को 195 रुपए की सब्सिडी दी है, ये इनकी पहुंच से बाहर है। सब्जी अब्जी तो हमारी गैस पे ही बनती है, खाना चूल्हे पे ही बनता है, रोटी चूल्हे पे बनती है और दूध गर्म होता है। ये चीज़ उस पुरअज़्म प्रोग्राम के लिए बड़ा धचका है जिसके तहत देही आबादी के 8 करोड़ घरों को खाना पकाने के गैस कनेक्शन दिए गए थे। मकसद ये था कि धुएं से पैदा होने वाले मसाइल को हल किया जा सके। घरों के अंदर की फ़ज़ाई आलूदगी ऐसी ही है जैसे कोई शख्स एक ही वक्त में लगातार सिगरेट पी रहा हो। वसी अंदाजों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर साल 5 लाख अफराद घरों के अंदर फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से वक्त से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं। एयर पोल्यूशन, खांसी उठती है, मलगम जाता है, तकलीफ बन जाती है मेरा जब ये गैस इस्तेमाल करना पड़ा है। चूल्हे से दिक्कत आती है कि जैसे खांसी उठ जाती है, कई बार आंखों में दर्द हो जाता है धुआं जाने से, और कई बार ऐसे सांस में प्रॉब्लम आ जाती है। ये ख़वातीन इस आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों का शिकार हैं और सिर्फ गरीब घराने ही इससे मुतासिर नहीं हुए बल्कि गांव के खाते पीते अफराद भी खाना पकाने की गैस का शाज़ो नादिर ही इस्तेमाल करते हैं।
अब बहुत दिक्कत हो रही है, एक तो महंगाई, ऊपर से सिलेंडर की महंगाई, तो बस आदमी को तो लाने को बहुत परेशानी हो जाती है। जब बोलती है सिलेंडर ख़त्म हो जाता है उस दिन बहुत दिक्कत होती है, मुझे सिलेंडर ख़त्म हो गया, करो 1000-1100 रुपये इकट्ठे जब सिलेंडर भरा जाएगा, काफ़ी परेशानी होती है। देखो सन 2011 से 2020 के दरमियान साफ तवानाई इस्तेमाल करने वाले घरानों की तादाद तकरीबन 30% से बढ़कर 70% तक पहुंच गई थी। ये फवाइद अब खतरे में है। एक तो ये हुआ कि उसने तरक्की को रोक दिया, और उससे बुरा ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत तरक्की हुई थी वो ख़त्म हो गई। लिहाजा अब जब तक कीमतें दोबारा एक सतह पर ना आ जाएं और सब्सिडी की मदद से या फिर तेल की आलमी कीमतों में कमी के बायस महदूद ना हो जाएं, हमारे ख्याल में उस वक्त तक ज़्यादातर घराने खाना पकाने के लिए LPG का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि मुहलिक धुएं में सांस लेने वाली इन खवातीन का मसला कुछ जल्द हल नहीं हो सकता। अंजना पसरीचा के साथ शहनाज अजीज, वॉइस ऑफ अमेरिका। और अब देखिए पेशावर की अंगारा फिश पर एक रिपोर्ट, और ये कि ये अंगारा फिश बनती कैसे है। मछलियाँ तो आपने बहुत तरह की खाई होंगी, कभी बारबेक्यू में तो कभी कढ़ाई में, लेकिन यहाँ पर आज हम आपको दिखा रहे हैं अंगारा फ़िश। अंगारा फ़िश कैसे बनती है और इसकी खासियत क्या है। पश्तून रिवायती पकवान में खास कर दुम्बे के गोश्त से बने पकवानों को बहुत पसंद किया जाता है। दुम्बे की चक्की या लाट की चर्बी में पका गोश्त तो शायद आपने बहुत खाया हो, लेकिन पेशावर में अब मछली की मुख्तलिफ अक़साम को भी इस अंदाज से पकाया जा रहा है। फ़िश को काट के फिर से इसको एक किस्म का मसाला दे के ना इधर ले आते हैं, और इसको ये फॉयल है इसमें बंद करके इसमें जो है ना ये चक्की डालते हैं, प्याज, टमाटर, मिर्च, सब कुछ, नींबू ये काट के ना इसके ऊपर डालते हैं, चक्की भी डालते हैं, और ये फॉयल में बंद करके ना ये ग्रिल में लगा के फिर उसको जो है ना पकाते हैं जी। इस मछली को एल्युमिनियम फॉइल में बंद करके तकरीबन 40 मिनट तक कोयलों पर पकाया जाता है। इसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, टेस्ट ज़बरदस्त है दूसरे उससे। ये हमारे पठान जो है ना ये दुम्बे को तो पसंद करते हैं ना, तो इसके चर्बी वगैरह होते हैं, वो इसमें मज़े होता है। हम भी आज एंजॉय के लिए इधर आए, हम बहुत दूर से इस फिश खाने के लिए। मछली को दुम्बे की चर्बी में पकाना सुनने में शायद अजीब लगे, मगर खाए बगैर फैसला ना कीजिए। दुम्बे की चक्की यानी चर्बी में बनी ये अंगारा फ़िश वाकई लाजवाब है। जब भी आप पेशावर आएँ तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduva.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही, और जाते जाते आपको दिखाते हैं समंदर की लहरों के अंदर जाकर तस्वीर कशी करने वाले फोटोग्राफर स्टॉक लिटिल की खींची हुई तस्वीरों की चंद दिलकश झलकियाँ। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।